My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about force and laws of motion MCQs. Question first. According to the third law of motion, action and reaction. Third law of motion, action and reaction. Understand? Always act on the same body. Always act on different bodies in opposite direction. Action and reaction. Third, have a same magnitude and directions. Act on either body at normal to each other. Understand? इसका क्या आंसर हो सकता है? Action and reaction. Answer B. Always act on different bodies in opposite direction. Answer B. Answer B. Always act on different bodies. एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये डिफरेंट बॉडीज पर करता है. डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन. अंडरस्टैंड? इन अपोजिट डायरेक्शन. इट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड, a goalkeeper in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to बॉल को कैच करता है वो, तो अपने हाथ जो है वो पीछे की ओर करता है. क्यों? Exert larger force on the ball. B. Reduce the force exerted by the balls on the hands. And C. Increase the rate of change of momentum. And D. Decrease the rate of change of momentum. Decrease the rate of change of momentum. So here answer D. Decrease the rate of change of momentum. Answer D. Next, question third. The inertia of an object tends to cause the object inertia to increase its speed, to decrease its speed, to resist any change in its state of motion, to decelerate due to friction. Think about this. Here answer C. To resist any change in its state of motion. इनर्शिया है, कोई भी चेंज जो है उसका जो है रेजिस्ट करती है. आंसर सी. टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. रॉकेट किस पर वर्क करता है? मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी. मोमेंटम एंड वेलोसिटी. बताइए इस पर किस पर जो है रॉकेट वर्क करता है? अंडरस्टैंड? हियर आंसर सी. मोमेंटम. आंसर सी. मोमेंटम.
रॉकेट वर्क करता है मोमेंटम पर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Next question. An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. कोई फ्रैक्शन नहीं है, frictionless. The force required to keep the object moving with the same velocity is, उसी वेलोसिटी पे चल रहा है तो उसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा. आंसर, थिंक अबाउट दिस. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion, since there is no external force acting on the object, it will remain in its original state of motion, hence zero force is required. So here answer B, 0 Newton. 0 Newton. Answer B. Next, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that motion of the train is. Understand? पैसेंजर जो है चलती हुई ट्रेन में वो कॉइन फेंकता है तो उसके पीछे गिरता है. इसका मतलब क्या है? ट्रेन इज एसिलेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, रिलेटेड, retarded and along circular track. इसका मतलब क्या हुआ? थिंक अबाउट दिस. आंसर ए, एसिलेटेड. यूनिफॉर्म मोशन में तो उसके हाथ पर ही कॉइन गिरेगा, लेकिन हाथ के वो पीछे बिहाइंड गिरता है जाकर. इसका मतलब वो एसिलेटेड है, ट्रेन जो है कि स्पीड बढ़ रही है, एसिलेटेड. आंसर ए. 7, ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. क्या है? वाटर टैंकर यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है. ऑन द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द वाटर इन द टैंक वुड. अचानक ब्रेक लगने पर वाटर जो है टैंकर का किधर को जाएगा? मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, बी अनअफेक्टेड, राइज अपवर्ड. थिंक अबाउट दिस. तो इसका आंसर किधर? मूव फॉरवर्ड. ठीक, आंसर बी, मूव फॉरवर्ड. Due to inertia motion, it moves forward. If the mass of a body is doubled and its velocity becomes half, understand, mass double कर दिया जाता है, velocity half कर दी जाती है, then the linear momentum of the body will, linear momentum of the body will कैसा हो जाएगा? remain same, become double, become half, become 4 times. Understand? Think about this. देखिए वेलोसिटी यहाँ पर जो है मास जो है वो डबल कर दिया गया, वेलोसिटी हाफ कर दी गई है, तो मोमेंटम रिमेन सेम. आंसर ए, रिमेन सेम. नेक्स्ट है a man is standing on a boat in still water. If he walks towards the shore, then the boat will. यदि वो किनारे की तरफ वॉकिंग करता है, जंप लगाएगा, तो वाटर किधर जाएगा? वाटर, बोट विल किधर? मूव अवे फ्रॉम द शोर, मूव टूवर्ड द शोर, remain stationary, and none of these.
थिंक अबाउट दिस एक्शन एंड रिएक्शन। क्या होगा? मूव अवे फ्रॉम द शोर। हियर आंसर ए, मूव अवे फ्रॉम द शोर। According to third law of motion, from the shore. Next, the momentum of an object is product of its mass and, बोलिए क्या हुआ? The momentum of an object is product of its mass and velocity, distance, inertia and force. Here answer A, velocity. वेलोसिटी। तो इस प्रकार से ये कुछ एमसीक्यूज हुए। तो और भी बहुत सारे एमसीक्यूज सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट जो तुमने याद किए हैं उसी के आधार पर बहुत से एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स याद कर लीजिए उनको अच्छी तरह से और उसी से आंसर निकल आएंगे। तो दैनिक जीवन में जड़त्व के बहुत सारे मतलब इनर्शिया क्या है, जैसे कि बस अथवा कार मान लो गति में है, तो अचानक ब्रह्मावस्था में आती है तो सवारियों कैसे पीछे की तरफ झुक जाती हैं। इसी प्रकार से ब्लैंकेट्स को तेजी से झाड़ने पर धूल के कण जो है वो अलग हो जाते हैं, और ट्री की ब्रांच को जोर से हिलाने पर फल और पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं। ये सब क्या है? ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। इस प्रकार से बहुत से मतलब जो है मेन पॉइंट पर एमसीक्यूज बनेंगे। अब ये रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो रॉकेट जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है? तो मास और इनर्शिया, यदि मास अधिक है तो इनर्शिया भी अधिक होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि कोई रबड़ बॉल है और उसी के आकार का पत्थर है, तो किस में इनर्शिया अधिक होगा? तो पत्थर जो स्टोन है उसमें इनर्शिया अधिक है, क्योंकि पत्थर का मास भी अधिक है। मोर मास मोर इनर्शिया। ये कभी कभी तुम देखा होगा, पहली ये जो फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, इसको बंद करते हैं तो बंद करने के बाद भी वो चलता रहता है, बंद करने के बाद भी चलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो है जो फैन है वो चलता रहता है, बंद करने के बाद भी कुछ देर तक चलता रहता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन का कौन सा जो नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ए यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो इस प्रकार से इनके फार्मूला और ऐसा यूनिट इसको भी लर्न कर लेंगे। ओके, टेक बेस्ट ऑफ लक।